Hello, everyone. Good afternoon. I'm Pooja from the Bladder Wellness team, and I'm hoping all of y'all are keeping in good health. Today, we're going to be talking on a very important subject, which has clearly been spoken a lot, especially during September month, understanding that this is the month where we talk about prostate cancer and its awareness. Prostate cancer occurs in the prostate gland in men, which is located just below the bladder in males and surrounds the top portion of the tube that drains the urine from the bladder. Prostate cancer is the most common cancer in men after skin cancer and grows slowly. And the chance of getting prostate cancer goes up really in men as they grow old. To throw more light on this subject and educate us on what's right for diagnosis and its treatment, today we're going to be discussing a lot on this subject from a very renowned urologist, Mr. Abhimanyu Anath from Sitamarhi, Bihar. Dr. Abhimanyu Anath has completed his MBBS from MAMC Delhi, MS Surgery from UCMS Delhi, and MCH Urology from SMS Jaipur. Dr. Abhimanyu is a consultant urologist, kidney transplant, and a laparoscopic surgeon practicing at Das Urology and Kidney Super Specialty Hospital. He has a rich experience in the field of urology and has performed various critical surgeries. He has treated his patients with utmost care, and it's truly a privilege to have him amongst us today to shed more light on this topic of prostate cancer. Welcome, Dr. Abhimanyu, to our show. Welcome to you all, and thanks for the introduction. I hope we'll be discussing a lot of important aspects about prostate cancer today. Since this is the month of September and it is Prostate Cancer Awareness Month, so we always try to do some information activities to spread the general information and make the general public more aware about this disease. Yes. Clearly, Doctor. So, without much of ado, I'd like to straight deep dive into this subject. And the first question I had, Doctor, is what is prostate gland? If we have to really educate our viewers, especially, and why is it even necessary to maintain its health? Well, prostate gland is a gland which is situated, as you rightly said, just below the bladder, just below the urinary bladder. Prostate gland is situated there, and it surrounds the urethra. The urethra, the tube that drains urine, it passes through it. So just where the urine tube starts, the urethra starts below the urinary bladder. That's where the prostate gland is. It is quite deeply situated. So that is why most people are not aware about this because this is an accessory gland. It has an accessory sexual function. So because it's not a main gland which is talked about normally, a lot of people don't even know what a prostate gland is. Prostate gland is an accessory sexual organ which secretes some secretions which form a part of the seminal ejaculate. So प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसके फंक्शन तो माइनर है लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सो द नोटोरिटी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज द ऑल्दो इट होल्ड्स अ माइनर येट इंपॉर्टेंट फंक्शन but it manifests itself with problems with its disease with prostate disease people face more problem and that is when they become aware about it. सो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक ग्रंथि है जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि ये इसका संबंध जो है ये पौरुष ग्रंथि कह सकते हैं आप उसको इसके इसके सिक्रीशंस जो हैं ये मेल सेक्सुअल फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं. Okay. So, Doctor, is it like prostate cancer is seen on a rise today, which is why we're talking about it? Yes, prostate gland. Okay, just before I speak about the rising incidence, let me just tell that prostate, what kind of problems this prostate gland creates. Because in humans, what happens is कि इसकी size में बढ़ोतरी होती रहती है. Prostate gland starts increasing with age as a male person ages. After an age of around maybe 55 or 60, there is a rapid growth in the size of the prostate gland. And since
देर इज अ वेरी लिमिटेड स्पेस, मैंने बताया था कि ये काफी डीपली सिचुएटेड होता है, देर इज वेरी लिमिटेड स्पेस फॉर इट टू एनलार्ज। तो इसका जो प्रेशर है वो यूरिनरी ट्यूब पर आता है, और इट द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड ऑन द यूरेथ्रा, एंड विच कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन। पेशेंट्स को यूरिन पास करने में कठिनाई होती है, जोर लगाना पड़ता है, और जो यूरिन का फ्लो है वो स्पीड उसकी कम हो जाती है, धीरे धीरे या पतली धार से यूरिन पास करते हैं, और फिर इसकी और दूसरी समस्याएं बनने लगती हैं। सो प्रोस्टेट ग्लैंड हैज टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वन इज बेनाइन एंड वन इज मैलिग्नेंट। यानी कि एक एज रिलेटेड बढ़ोतरी तो सभी पुरुषों में होगी, वो एक साधारण प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि हो रही है या उसके साइज में बढ़ोतरी हो रही है। किसी किसी पेशेंट्स में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि होती है उसमें कैंसर डेवलप कर जाता है, एंड दैट कॉजेज इवन मोर प्रॉब्लम्स। सो coming to the incidence of prostate cancer, it is a fairly common cancer if we only talk about the male patients. प्रोस्टेट कैंसर जो है ये पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है आफ्टर स्किन कैंसर। एक अंदाज अगर हम लें तो वर्ल्ड ओवर 3 लाख से ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होते हैं, और इसका इंसिडेंस जो है मतलब 8-10 लोगों में से एक पुरुष जो है इस बीमारी से सफर करेगा, उसको ये डायग्नोसिस होगी उसके लाइफ टाइम में। तो 1 in 8 पर्सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस डिजीज। और उसमें ये है कि अगर जितना लेट इसका प्रेजेंटेशन होगा, जितना लेट ये पेशेंट्स डिटेक्ट होंगे, उतने ही इसके प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। So our focus with prostate cancer awareness is that first of all, people get aware about this organ, what kind of problem it creates, and if God forbid cancer development is happening, it should be detected at an early stage. Early detection पे इसमें focus काफी रहता है इस disease को prevent करने के लिए या इससे deal करने के लिए। ओके। सो डॉक्टर, लेकिन ये कैंसर हो क्यों रहा है और क्या किया जाए इस तरह के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, कैंसर हो क्यों रहा है, ये तो जैसे किसी भी अन्य ऑर्गन में हो रहा है वैसे ही है, मल्टीफैक्टोरियल है। मतलब इसमें कई तरह के फैक्टर्स हैं, जी। जिसमें कि डाइट, स्मोकिंग, यूरिनरी इन्फेक्शंस, और जेनेटिक फैक्टर्स, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें जिन पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर डेवलप करता है। लेकिन ये डिटेक्शन इसका क्या है कि जैसे इसके बारे में जब रिसर्च हुई अराउंड 90s में, इस पर जो है ज्यादा रिसर्च हुई, और इस पर क्या है इसके अर्ली डिटेक्शन की वैल्यू समझ में आई। डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर को अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो ये एक बहुत ही फ्रेंडली कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो इट इज लेस इन एग्रेसिव कैंसर देन ऑल अदर कैंसर्स। इट हैज अ वेरी प्रोट्रैक्टेड कोर्स। अगर एक पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है और वो लो ग्रेड है या कंफाइंड है, तो 7-8 साल तक तो पेशेंट को वैसे ही वो धीरे 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 करके इफेक्ट करता है। दूसरे कैंसर्स में पेशेंट डर जाते हैं कि भाई अब हमारी लाइफ कितनी है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का जो कोर्स है वो मतलब 80 to 90% कैंसर्स में स्लो ग्रोइंग होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। तो इसलिए प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अर्ली डिटेक्शन के बारे में ज्यादा जोर दिया गया। और ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं, ब्लड टेस्ट हैं, जो कि हम जिसके बारे में आगे बात करेंगे, जी। जिनकी ब्लड टेस्ट में उसके लेवल से इसको डिटेक्ट करने लग गए हम लोग। तो क्या हुआ कि 90s में इस पर एक विशेष एम्फेसिस हुआ कि आप जनरल पॉपुलेशन जब 60s के एज में चली जाती है, आप उसमें डिटेक्शन के लिए चेक कीजिए, तो ये बीमारी पकड़ में आएगी। तो देयर वाज अ सडन बूस्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड द नंबर ऑफ केसेस बीइंग डिटेक्टेड। पहले हम्म। क्या था कि ओल्डर एज में पेशेंट को अगर लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है तो वो दूसरी बीमारियों से ज्यादा परेशान रहते थे या उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो जी। ये अनडिटेक्टेड रह जाता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिजीज दैट वाज अनडिटेक्टेड। नाउ जी। देयर इज मोर frequent detection, and that is why you see more patients of prostate cancer in the community. ओके। सो डॉक्टर, ये तो हम समझ गए कि ये बहुत ज्यादा सीरियस कैंसर नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स जहां हम जानलेवा बीमारी की बात करते हैं। बट किस तरह के सिम्टम्स हैं जो हमारी पेशेंट्स या हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए कि इस सिम्टम के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या एनीथिंग दैट यू वांट टू हाईलाइट? जी हाँ, तो मैं इसमें मैं फिर से दोहराऊंगा कि प्रोस्टेट कैंसर में भी प्रोस्टेट के साइज की बढ़ोतरी होती है।
अंदर जी अंदर सेल्यूलर लेवल पर चेंजेस होते रहते हैं जो कैंसरस होते हैं। और जी। एक साधारण प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है जिसको बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हम लोग बोलते हैं, या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, बीपीएच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोनों में कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन है। हम्म। जैसे जो मैंने बताया था, यूरिन पास करने में कठिनाई है, जोर लगाना है, रात को बार बार उठना पड़ता है, बार बार नींद टूटती है, दिन में फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, कभी कभी अर्जेंसी हो जाती है, रोक पाने में असमर्थ होते हैं। जो ओल्डर एज में जो मेल पेशेंट्स हैं, उनको लगता है यूरिन फील होता है तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं, और बाथरूम जाते जाते कुछ लीकेज भी हो जाती है, कुछ बूंदे। तो ये सब सिम्टम्स तो दोनों में कॉमन होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो जो साइज बढ़ोतरी हो रही है और पेशाब की ट्यूब उसके बीच से जा रही है, तो वो पेशाब की ट्यूब को दबाता है और यूरिन को पास करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो वो सिम्टम्स तो कॉमन होंगे। कुछ जी खास सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के, जो कि जनरली देखा गया है कि जैसे यूरिन में ब्लीडिंग, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है और पेशाब की थैली में कोई समस्या नहीं है या किडनीज में कोई समस्या नहीं है, तो फिर जो उसके बाद सबसे कॉमन कॉज प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, जिसमें यूरिन में अगर पेशेंट फ्रैंक ब्लड देख रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिम्टम होना चाहिए, पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव अवॉइडिंग हो रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी दिखाएं। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही निकले, लेकिन जी। आपकी जो स्क्रीनिंग है या डिटेक्शन है वो सही समय पर हो जाएगी। और अगर वो सिंपल है तो सिंपल बीमारी का दवाई चलेगा, अगर सपोज गॉड फॉरबिड कैंसरस निकलता है तो कैंसरस के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। ओके। एक और सिम्टम्स इसमें होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, कि प्रोस्टेट कैंसर इफ इट इज डिटेक्टेड एट अ लेटर स्टेज, जी। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बोन्स में चला जाता है। इट स्प्रेड्स इनटू द बोन्स, इनटू द एक्सियल बोन्स लाइक द स्पाइन, like your pelvic bones. So ओके। patients usually feel tiredness, bone pains, and they feel unable to walk for a their usual activities, walk और ये सब करने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक सिम्टम है प्रोस्टेट कैंसर का, जो कि काफी कॉमन है। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर जो है किडनीज के नीचे जो यूरेटर्स जो ट्यूब होते हैं, वो हम्म। जहां ड्रेन करते हैं उनको दबाने लगता है, उनको प्रेस प्रेस कर देता है प्रोस्टेट कैंसर, उनको ब्लॉक कर देता है। ऐसे में किडनीज में सूजन होना और किडनीज के रिपोर्ट में गड़बड़ी होना, यानी कि जैसे एक रीनल फेलियर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देर इज डायलिटेशन ऑफ द किडनीज, देर इज अ डिरेंजमेंट ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल्स, बढ़े हुए यूरिया क्रेटिनिन लेवल्स आते हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. So prostate cancer sometimes at an advanced stage presents with these problems. ओके। So, doctor, I remember you mentioning about this also being due to genetic factors. So, अगर ये बीमारी जेनेटिक है तो क्या घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी रिस्क हो सकता है? किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है वो यूजुअली तो स्पोरेडिक ही होता है। मतलब आप ये मान के चलें कि 10% केसेस में हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिक कॉजेज की वजह से होता है। 90% इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल होता है। जी लेकिन जो कि मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टी फैक्टोरियल हो सकते हैं। 10% केसेस में देखा गया है कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंकेज। और उसका हमको कैसे पता चलता है, उसका सबसे जो सिंपल बात है कि अगर आपके फैमिली में और किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी को डिटेक्ट होता है, तो जी उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जी। his brother, his father, I mean his son. If an old man is diagnosed, then या his brother or his son, they become at risk. या जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन अगर एक फैमिली में 3 से ज्यादा लोग प्रोस्टेट कैंसर से अफेक्टेड हैं, या 3 जनरेशन में वो आ रहा है, जी। ग्रैंडफादर को हुआ, फिर फादर को भी था, और अब अगर सन को भी आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली जेनेटिक, इसमें हेरिडिटरी प्रोस्टेट कैंसर है, जिसका कि कुछ जीन म्यूटेशंस जैसे BRCA2 जीन है, एंड देर आर सर्टेन अदर जीन्स कि जिनकी म्यूटेशंस के लिए हम लोग फिर उसमें टेस्टिंग कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है। साथ ही साथ अगर एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 55 की एज से पहले डिटेक्ट हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर किसी को, हम्म। तो ये देखा गया है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक फैक्टर्स जब होते हैं ना हेरिडिटरी, तो द प्रोस्टेट कैंसर डेवलप्स एट अ यंगर एज, या at an age less than 55, which is हम्म। usually very uncommon, and it is only about 2-3% of the cases.
Yeah. बट जिन पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर दो रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जिनका एज एट डायग्नोसिस वाज लेस देन 55, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि दीज पीपल वेर जेनेटिकली एट रिस्क. But a Okay. large population of prostate cancer patients, they do not have any specific genetic predisposition. तो So, ऐसे लोगों को भी जिनके फैमिली में डिटेक्ट हो रहा है, उन लोगों को फिर अपना जो स्क्रीनिंग है, प्रोस्टेट कैंसर का जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, अर्ली जी, डिटेक्शन वाला प्रोग्राम है, उस पर ध्यान देना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, सो प्लीज गो एंड गेट योर चेकअप्स डन अर्ली. एंड डॉक्टर, ये सिमिलर केस मैंने कहीं पढ़ा था जहां फादर आई थिंक 50 years के थे, बेटा आई थिंक ऑब्वियसली 30s में था. सो ही सेड आई एम प्रीटी यंग टू अंडरगो समथिंग लाइक दिस, लाइक अ टेस्ट. सो आई डोंट नो, द डॉक्टर्स एडवाइज देम टू रीच आउट एट द एज ऑफ 40 or 45. बट इज दैट द राइट अप्रोच टू टेक, डॉक्टर? Yes, yes, you're right. You're right. Actually, जो let's talk about PSA screening now because I think this is related to that. Yeah. PSA screening का मतलब है कि screening is done in a healthy individual. Screening is to look for a cancer in healthy individual, and there are very few cancers where screening actually has some benefit. Like gastroenterological जो intestinal tumors होते हैं, उसमें भी screening has a very important role. Right. आपने सुना होगा पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर्स में किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए. इसी प्रकार से तो इसी प्रकार से प्रोस्टेट कैंसर में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. Okay. उन एक नॉर्मल ब्लड सैंपल से उसमें पीएसए को के लेवल को चेक किया जाता है. देखा Okay. गया है कि जब प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी मरीज में है तो पीएसए लेवल्स आर हाई. दे आर हाई एंड दे आर फॉर दे आर मोर देन 4. If that level is more than 4, then it clearly gives an indication that this needs to be further investigated. और इन इस मरीज में जिसमें पीएसए का लेवल 4 से ज्यादा है, इसमें प्रोस्टेट कैंसर आने की संभावना है. तो उसमें फिर हम लोग बायोप्सी या जो भी दूसरे तरीके हैं उसको कंफर्म करने के लिए वो हम लोग करते हैं. एमआरआई है, बायोप्सी है, तो ये सब किया जाता है. तो अब करना क्या चाहिए? तो व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द स्क्रीनिंग? सो फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन एक्चुअली 55 प्लस जो एज है, उसमें 55 to 70 years के बीच में स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड. सो Mhm. एक बेस लाइन पीएसए वैल्यू हम लोग 55 years पे कराते हैं, फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं, और एक प्रोस्टेट को एग्जामिन करके देखते हैं. पेशेंट का एक एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं इफ इट इज नॉर्मल, और उसमें हमें कोई नोड्यूल्स या कुछ हमें मिल रहा है. कुछ हमें अबनॉर्मेलिटी तो नहीं मिल रही है. प्रोस्टेट के सरफेस में नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, हार्ड उसका जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड फील होता है. अगर हमको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, देन स्ट्रेट अवे अगर ये आ रहा है, गांठ फील हो रही है, हार्डनेस फील हो रही है, वी हैव टू गो फॉर बायोप्सी स्ट्रेट अवे. तो फिर उसमें वो स्क्रीनिंग वाली बात नहीं रह गई, उसमें तो आपने उसको डिटेक्ट कर लिया एक तरह से, आपने उसको डायग्नोज ही कर लिया. लेकिन अगर प्रोस्टेट एग्जामिनेशन पे नॉर्मल है और पीएसए लेवल जो है वो 4 के नीचे है, तो फिर हम लोग उसको एनुअल या 2 साल में एक बार उसको हम लोग रिपीट करते रहते हैं पीएसए लेवल्स. Okay. अगर 4 से ऊपर है तो फिर हम लोग एमआरआई करके देखते हैं, उसमें भी सस्पिशियस है तो हम लोग बायोप्सी करते हैं. लेकिन जिन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री है, इफ द पेशेंट नोज दैट हिज फादर, हिज uncle had prostate cancer, he knows that history, then that screening should begin at an age of 40 to 45. His baseline PSA should be done between 40 to 45. If it is less than 1, then he can go into a normal screening protocol at the age of 55. If it is more than 1, then he needs to get it done more frequently, maybe at least once in 2 years. Annual is the best, but annual checkup needs to be done for prostate screening. सो एक ये पॉइंट है कि जहां पर फेमिलियल या फिर जेनेटिक फैक्टर्स लग रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, वहां पर स्क्रीनिंग भी यंगर एज पे शुरू करनी पड़ती है. उन जी. पेशेंट्स में देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर यंगर एज पे डेवलप हो जाता है जिनमें जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो रहा Mhm. Okay. है. बट लार्जली एक ये भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है. ये जो है ये 60s के बाद ही है. मोस्ट कॉमन एज एट डिटेक्शन जो है वो 65-70 के आसपास में ये डिटेक्ट होता है नॉर्मली. Okay. तो इसीलिए एटलीस्ट 55 के बाद तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जरूर हम लोगों को करना चाहिए. So, डॉक्टर, क्योंकि आपने कहा है दिस इज एन elderly प्रॉब्लम, is it like the treatment is very difficult for an elderly patient to undergo? Is it a painful treatment? Mhm. Okay, okay. Let's come to the treatment. So before the treatment, I just want to say that the confirm how do we confirm the disease? We confirm the disease with a biopsy.
व्हाट इज अ बायोप्सी? बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक सुई की जांच है। एक बिल्कुल पतली सी सुई होती है जिससे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख करके और उसमें से प्रोस्टेट से एक सुई का एक सैंपल ले लेते हैं। एक बिल्कुल उसके फाइन, जैसे आप समझ लीजिए लाइक थ्रेड है ना, ओके। एक थ्रेड जैसा छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। तो ये पेनफुल नहीं होता है, ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। और इससे कई मरीज डर जाते हैं कि मुझे बायोप्सी कराना है, नीडल से जांच होगी, बट दैट नीडल इज अ पेनलेस, ऑलमोस्ट पेनलेस नीडल विथ लोकल एनेस्थीसिया। हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और फिर हम लोग उसमें से जो है अल्ट्रासाउंड से देख करके प्रोस्टेट के अलग अलग एरिया से सैंपल्स ले लेते हैं। उसमें अगर प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो फिर वी हैव टू चेक वेदर इट इज कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट तक सीमित है या फिर ये और कहीं तो नहीं फैला है। जिसके लिए हम लोगों को एमआरआई और एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन जैसा आपके दर्शकों को भी पता होगा कि कैंसर का टेस्ट होता है। एक सीटी स्कैन होता है पेट, जिसको पेट स्कैन कहा जाता है, जो एक स्पेशलाइज्ड सीटी स्कैन होता है कैंसर डिटेक्शन के लिए। और हम ये देखते हैं कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो प्रोस्टेट तक लिमिटेड है या बोन्स में चला गया है या लिम्फ नोड्स में चला गया है या किसी दूसरे ऑर्गन, लिवर, लंग कहीं और तो नहीं फैल गया है। और फिर सारा ट्रीटमेंट इस पर निर्भर करता है कि प्रोस्टेट तक सीमित है या ये फैला हुआ कैंसर है। So for a prostate cancer which is confined to the prostate, let's take one scenario where one the prostate cancer is confined to the prostate and there is no evidence of any spread anywhere else in the body. प्रोस्टेट तक अगर सीमित है, कहीं और नहीं फैला है, तो उसमें क्या है कि उसमें सर्जरी करके हम लोग उस पूरे प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं। और उस रिमूव करने से पेशेंट एक तरह से क्योर हो जाता है। तो ये सर्जरी अब, पहले ओपन सर्जरी होती थी, अभी ये लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी होती है। ओके। और ये एक तरह से क्यूरेटिव होता है। तो अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया और उसको रेडिकल सर्जरी करके प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया तो पेशेंट एक तरह से कैंसर फ्री हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। सो डॉक्टर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चैट विंडो में आया है जो हेमंत जी ने पूछा है, इज प्रोस्टेट कैंसर क्योरेबल? सो आई थिंक यू जस्ट मेंशन्ड इट, बट इन केस यू वांट Yeah, to yeah, we were just discussing that. So, in those patients, now let us talk about this surgery, how difficult it is. No doubt, it is a major surgery and it is challenging for the surgeon, but it is being now done regularly in India at multiple centers. Even robotic surgery is being done in at multiple centers. The advantage is कि इसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। पेशेंट अगले दिन से ही आप समझिए चलने वलने लगता है। नेक्स्ट डे से ही इज एबल टू टेक हिज नॉर्मल फूड। नॉर्मल मतलब जो एक हॉस्पिटलाइज पेशेंट को फूड हम देते हैं वो फूड ले सकता है। ही उसकी फिजियोथेरेपी या उसका वॉकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और ये सर्जरी अब धीरे धीरे करके बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है पेशेंट्स के लिए। देर आर वेरी फ्यू कॉम्प्लिकेशंस, इट इज नॉट एट ऑल अ रिस्की सर्जरी। सो अगर किसी को ये सर्जरी करानी भी पड़ती है तो ही शुड गो अहेड विथ एन एक्सपीरियंस्ड सर्जन। अगर रोबोटिक सर्जरी हो पाती है तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो है आउटकम सबसे अच्छा माना गया है। ओके। तो ये तो क्योर की बात हो गई। दूसरा है कि अगर हमने प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज किया और प्रोस्टेट कैंसर के मेटास्टेटिक वर्कअप में हमने जांचें कराई उसकी, और प्रोस्टेट कैंसर हमने पाया कि वो बोन्स में चला गया है और जगह फैल गया है। तो ऐसे में आपने सुना होगा कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। तो एंड दोज आर पेनफुल ट्रीटमेंट्स, दे आर दे कॉज सम डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। जो यस। क्वेश्चन आप पूछ रहे थे अभी, जी। तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या है कि इट इज अ हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो एक एबनॉर्मल तरीके से उस पर एक्ट करने लगता है, उसके रिसेप्टर्स पे, और प्रोस्टेट के सेल्स को एनलार्ज करने लगता है, बड़ा बड़ा कर देता है, उसमें गांठें बना देता है, उसमें कैंसरस डेवलपमेंट करा देता है। सो द फूड फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज एक्चुअली द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। So why prostate cancer I said is a friendly cancer या is a less harmful cancer than other cancers, क्योंकि इसका जो ये हार्मोन डिपेंडेंसी जो है, ये सबसे पहले हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए हार्मोन थेरेपी है, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी बोलते हैं। तो अगर हम मेल हार्मोन को के लेवल्स को डाउन कर दें तो उसमें एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होता है प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में। और ये पूरे बॉडी में होता है, ना सिर्फ प्रोस्टेट में, बल्कि अगर ये
बोन्स तक चला गया है, अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में चला गया है, वहां पर भी सारे प्रोस्टेटिक कैंसर के सेल्स श्रिंक कर जाते हैं. सो दिस ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म, इन टैबलेट फॉर्म, and also there is a surgical way to do this hormone blockade, androgen deprivation therapy. सो सबसे पहले तो ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर अगर फैला हुआ भी आता है, अगर वो स्प्रेड भी हो गया है, फिर भी एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से ये प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छा सुधार हो जाता है. कीमोथेरेपी की बात तो बहुत बाद में जाकर के आती है. जिन पेशेंट्स को सपोज ये थेरेपी कुछ साल काम करने के बाद काम करना बंद कर देती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स, आई एम टॉकिंग, मैं सालों में बात कर रहा हूँ, मैं महीनों में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सालों में बात कर रहा हूँ. कुछ साल तक हम पेशेंट्स को, 6 साल, 7 साल, 5 साल हम पेशेंट्स को ठीक रखते हैं हार्मोन थेरेपी पे. उसके बाद अगर सपोज ये काम नहीं कर रही है जिन मरीजों में, उन मरीजों में हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है. और रेडियोथेरेपी भी एक मोडालिटी है, जो जो क्यूरेटिव वाली बात हम कर रहे थे, उस पर मैं फिर से बताऊंगा. तो ये जो ट्रीटमेंट है उसमें उसको हम सर्जिकली भी कर सकते हैं. कभी कभी मेडिकल कास्ट्रेशन का कॉस्ट फैक्टर ज्यादा हो जाता है. ऐसे पेशेंट्स में मेडिकल हार्मोन थेरेपी का कॉस्ट ज्यादा आता है. ऐसे मरीजों में ये ऑप्शन है कि हम उनके जो टेस्टिस हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ऑर्किडेक्टमी कर देते हैं, बायोलेटरल ऑर्किडेक्टमी कर देते हैं. तो एक वो भी एक सिंपल सर्जरी है, जिसमें एक दिन भर्ती रहना पड़ता है, और उसको कर देने से लगभग वही चीजें अचीव हो जाती हैं जो मेडिकल कास्ट्रेशन से अचीव होती हैं. तो वो एक वन टाइम थेरेपी होती है. और दवाइयां तो फिर चलती हैं लंबी, जो हार्मोन वाली हैं, तो उसका कुछ कॉस्ट फैक्टर आता है. सो यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स, एंड यू हैव टू बैलेंस आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. चलिए डॉक्टर, सो क्योंकि आप कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे, there's a relative question coming from यश. वो पूछ रहे हैं, is there a link between prostate cancer and any other cancer in the body? So anything that you want to highlight? Well, there is no direct link between prostate cancer, but yes, in the genetic component that we talked about, जो 10% पेशेंट्स जिनमें की फैमिलियल हिस्ट्री मिलती है, जेनेटिक फैक्टर्स मिलते हैं, तो जी. उसमें जो जीन म्यूटेशन होता है, दैट कैन लीड टू अदर कैंसर्स ऑल्सो. जैसे BRCA2 जीन मैंने बताया था, वो ब्रेस्ट कैंसर में भी है, वो कोलोरेक्टल कैंसर्स में भी देखा गया है. कि तो वैसे पेशेंट्स में फिर आपको अलग अलग ऑर्गन के कैंसर मिल सकते हैं एक साथ, या अलग अलग समय पर उनके अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, विच इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. जिनमें वो जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया है, उन्हीं मरीजों में ऐसा देखा गया है. Okay. प्रोस्टेट कैंसर में एक मोडालिटी ये भी है जो मैं बात करना चाहूंगा, कि रेडिएशन की जो का क्या रोल है, प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन का क्या रोल है. उसमें ये है कि दो रोल हैं. एक तो ये है कि अगर पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज होता है और वो प्रोस्टेट तक सीमित है, तो उसकी आइडियली तो सर्जरी होनी चाहिए और वो क्योर हो जाएगा. जो मैंने बात किया, रोबोटिक सर्जरी होती है ये. लेकिन अगर पेशेंट ओल्ड एज में है, अनफिट है, उसकी इतनी मेजर सर्जरी नहीं हो सकती है, किसी और कारण से अनफिट है फॉर सर्जरी, ऐसे में रेडिएशन ऑल्सो हैज अ क्योरेटिव रोल. उसमें रेडिएशन का एक प्रोटोकॉल है जिसमें फुल डोज उसको दे करके प्रोस्टेट कैंसर को टारगेट करके दिया जाता है. आजकल इमेज गाइडेड और एडवांस्ड मेथड्स आ गए हैं जिससे कि रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स ना हो, कम से कम हो, और सिर्फ प्रोस्टेट को ही टारगेट करके रेडिएशन दिया जाए. उसमें भी हम लोग हार्मोन थेरेपी भी देते हैं साथ में, फिर कुछ दिनों के बाद हार्मोन थेरेपी विड्रॉ कर लेते हैं. और रेडिएशन से भी देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर क्योर हो जाता है. Okay. Doctor, there's another question from Deepak. He's trying to ask that is prostate cancer more common in India or in African men? Is there some difference? Yes, there is a racial predisposition. African Americans and Jamaicans, उनमें देखा गया है कंपेयर्ड टू एशियंस एंड वाइट पॉपुलेशन, वो लोग ज्यादा इससे ग्रसित होते हैं. उनके अंदर कुछ रेशियल फैक्टर्स हैं, जो उनके जेनेटिक फैक्टर्स कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से उनमें प्रोस्टेट कैंसर देखा गया है कि ज्यादा एग्रेसिव भी होता है, ज्यादा कॉमनली डायग्नोज भी होता है. बट हमारे पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में उनके मुकाबले कम है काफी. Okay. All right. Hope you got your answer, Deepak ji. Another question from Ajit. He says, how can we manage the side effects of the treatment of prostate cancer? That is a very wide topic. I don't know what he's specifically trying to ask, Yeah, I but think he's trying to say that क्या साइड इफेक्ट्स होंगे इस ट्रीटमेंट के बाद, और अगर हैं साइड इफेक्ट्स तो किस तरीके से उसे हम मैनेज करें.
ओके ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन थेरेपी, जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। हार्मोन थेरेपी, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी। तो उसमें एक साइड इफेक्ट ये माना गया है कि बिकॉज हार्मोन हम सप्रेस कर देते हैं, तो कभी कभी बोन्स पे असर पड़ता है, बोन हेल्थ पे असर पड़ता है। ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, यानी कि बोन की वीकनेस हो सकती है। उसके अंदर जो कैल्शियम होना चाहिए मजबूती से, वो कम हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग वो थेरेपी देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन थेरेपी देते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि जो पहले से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, यानी पहले से जो हार्ट के पेशेंट हैं और उनको स्टेंट वगैरह लगा हुआ है, पहले से हार्ट में स्टेंट लगा हुआ है, उसमें स्टेंट थ्रोम्बोसिस या कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म हार्मोन थेरेपी के बाद। तो वैसे पेशेंट्स में हमें और कॉशियस रहना पड़ता है। और आजकल उसमें नई मेडिसिन आ गई हैं जिनमें कि कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी जो है वो देखा गया है। जैसे टैबलेट्स में रेलुगोलिक्स आ गया है, या वो खैर वो डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, नई मेडिसिन आ गई हैं जो कि जिससे हार्मोन सप्रेशन भी हो जाता है और ये कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं। Okay, so side रेडिएशन के effects. तो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे उसमें ब्लैडर की सेंसिटिविटी वगैरह थोड़ी बढ़ जाती है। पेशेंट्स को उससे थोड़ा पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, या जल्दी जल्दी यूरिन पास करना है, इस प्रकार का अनुभव हो सकता है। रेडिएशन तो हमें देना ही पड़ता है कैंसर को क्योर करने के लिए। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ रेडिएशन देर आर समटाइम्स सर्टन इफेक्ट्स ऑन द ब्लैडर और ऑन द रेक्टम, जो कि हमें दिखते हैं। तो उसको मेडिसिन से मैनेज किया जाता है, डाइटरी कंट्रोल से और मेडिसिन से मैनेज किया जाता है। सर्जरी जो होती है, रेडिकल सर्जरी, उसके दो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि देर इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, पेशेंट्स को बाद में इरेक्शन अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो खासकर अगर यंगर एज ग्रुप में किसी को डायग्नोज हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बॉदर करती है। तो उसके लिए जो है नर्व स्पेयरिंग प्रोटोकॉल से सर्जरी की जाती है, जिससे कि ये ना हो। और कुछ उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इरेक्टाइल फंक्शन मेंटेन करने के लिए। और दूसरा होता है कि ट्रांजिएंट इनकॉन्टिनेंस, यानी सर्जरी के कुछ दिनों के बाद तक, यानी कि 6 वीक्स और सो, एक केयर के लिए डायपर लगाना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट को एक अपना यूरिन का जो सेंसेशन है और उसको होल्ड करके वॉशरूम तक जाना, तो उसमें कुछ बूंदें लीकेज हो जाती है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, persists for a few weeks. But with medicines and exercise, that problem also goes away, and patient is cured of cancer, which is the primary thing. And these minor side effects are sometimes seen, और उसको इस तरह से मैनेज करते Okay. सो डॉक्टर, इज देयर अ चांस कि हमने अगर ट्रीटमेंट करवा लिया है प्रोस्टेट कैंसर का, ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तो क्या दोबारा से पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या ये कंप्लीटली एक बार ही ट्रीट हो गया तो इट्स क्योर्ड फॉर लाइफ? देखिए, जो ऑर्गन कन्फाइंड कैंसर होता है, तो उसमें तो ये न के बराबर है कि ये दोबारा आ जाएगा। ओके। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कहीं और जा चुकी थी और वो डिटेक्ट नहीं हुई थी, तो जी। कभी कभी देखा गया है कि देर इज अ स्मॉल चांस। जैसे सर्जरी के बाद तो ये नहीं देखा गया है, लेकिन रेडिएशन के बाद कभी कभी देखा गया है कि हम्म। जो उसमें वहां पर जो प्रोस्टेट वाला एरिया है, वहां पर दोबारा से उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ओके। उसमें ये देखा गया है, या लिम्फ नोड्स में अगर मिस हो गया था फर्स्ट गो में, तो इसीलिए लिम्फ नोड रिमूवल भी किया जाता है सर्जरी में। तो इसीलिए सर्जरी में ये चांस कम होता है। लेकिन रेडिएशन में तो आप एक कन्फाइंड एरिया में रेडिएशन दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें फिर हम लोग पीएसए लेवल उसमें भी कराते रहते हैं सर्जरी के बाद, और मॉनिटर करते रहते हैं। अगर ये दोबारा हो किसी पेशेंट को, तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और उसकी दूसरी थेरेपीज हम दे सकते ओके। हैं। पर यूजुअली दैट रिस्क इज लो, लो रिस्क। ओके. Doctor, I think we've spoken a lot about prostate cancer, but anything else you want to highlight about this whole subject, right from treatment, diagnosis, anything that you want to highlight? Well, I think we have covered most of the subject, and I just tried to emphasize on the point कि प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जो है यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस को आप फॉलो करें। और उसमें अर्ली डिटेक्शन पर ही मैं एम्फेसाइज दोबारा करना चाहूंगा, बिकॉज द ट्रीटमेंट बिकम्स मच मोर सिंपलर। जी. एंड जो उसके ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे किडनी पे असर पड़ना, या फिर ब्लीडिंग है, या जो पेशेंट का जो बोन्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो चलना फिरना
जी। ये सारा इफेक्ट हो जाता है, पेशेंट को बेड रिडन स्टेट में जाना पड़ जाता है। तो ये सब स्टेट तब हो पाता है जब पेशेंट बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं लेता, जी। ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता। तो जस्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि प्रोस्टेट कैंसर से आप घबराएं नहीं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैंने कहा कि 10 में से एक इंसान को फेस करना ही पड़ेगा। तो जी। उसके लिए अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है तो आपका जो है लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसकी जो डायग्नोस्टिक जांचें हैं वो भी बहुत इनकन्वीनियंट नहीं है या पेनफुल नहीं है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो तो बहुत ही इजी है कंपेयर टू अदर कैंसर्स। जी। ओनली कैंसर्स विच आर मोर एग्रेसिव, विच इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ द पेशेंट्स, इसमें कीमो वगैरह हमें जल्दी देना पड़ता है या सेकेंड लाइन थेरेपीज देनी पड़ती है। तो मैसेज यही है कि अगर क्योंकि उसमें ये है ना कि 70 to 80% पेशेंट्स आपके जो है वो इजीली ट्रीट हो सकते हैं। दिस कैंसर हैज द दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल। Clearly. Thank you, doctor. I think, as you rightly mentioned, early detection, early care is the only way that we get a patient early treatment as well. So make sure you reach out to your urologist whenever you're experiencing any discomfort, especially with your urinary bladder. So thank you very much, doctor. I think this has been a very, very informative session with all of us, and I'm sure all our viewers have taken a lot of benefit and with all the information that you've shared. So I'd once again like to really thank you, Dr. Abhimanyu, for your valuable time. And it has been quite an informative session. So thank you very, very much for your presence. Thank you थैंक very यू सो much. मच फॉर हैविंग मी। Thank you, Doctor. And thank you very much, all the viewers as well, for being participative, sharing all your questions. I'm hoping that we addressed most of them through this session. And for more information and updates, do stay connected to our FB page, Bladder Wellness. We're also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you, everyone, and have a great day.